Hello everyone, welcome back to the channel. I know many students are stressed, confused and disappointed after the discussion about NEET UG, re-NEET and expected tough paper level. But listen carefully, this is not the time to feel weak or lose confidence. Stay calm, stay focused and believe in yourself. One exam cannot decide your entire future. If you have worked hard, your effort will never go to waste. Do not be sad, do not panic. You can do it and you will do it. Today in this video, we are going to discuss the expected cutoff for NEET UG re-NEET. If the paper level becomes tougher, what can happen to government medical colleges cutoffs, AIQ cutoffs, state cutoffs, and how students should prepare mentally for the next exam. First of all, many students are asking if re-NEET like happens and the paper becomes difficult, what will the cutoff decrease, increase? The simple answer is yes. Most probably whenever the difficulty level increases, the overall average marks of student decrease. Like उनको अगर पहले जो है 650 आ रहे थे, अब पेपर टफ बनेगा तो उनको 550 ही आ सकते हैं. And when average marks go down, cutoff also comes down. Now let's understand this category wise. For general category students, if the paper become tougher than the previous NEET level, like जो पहले आया था, the safe score for top government medical colleges may reduce slightly compared to a normal easy paper. Students who are targeting like 650 may get opportunities even at low scores depending on competition and normalization of performance. For OBC, EWS categories, what the cutoff can also shift downward becomes because tougher papers usually create a bigger difference between average and top performing students. So first of all, let me clear AIQ cutoff. So for round first, if you are from general category, then you have to score like 550 plus, I think. केस पेपर टफ आता है तो ठीक है. अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर बात करें तो लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया का कट ऑफ मैं बोलूँगा, फिर आपका स्टेट का कट ऑफ भी मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश करूँगा. तो लास्ट ईयर कि पेपर टफ था एंड 534 ओपन मेरिट का राउंड फर्स्ट में एंड एट द एंड तक 525 मार्क्स पे जो है कॉलेज अलॉट हो गया था इन नागालैंड थ्रू ऑल इंडिया कोटा. एंड फॉर EWS कैटेगरी it was 528 in first round and for OBC it was 534. ठीक है. And for SC category it was 457. ST category it was 436 in round first. ठीक है. अगर हम PWD की बात करें तो वो यहाँ पर जो है लाइक आपकी जो रैंक थी यहाँ पर वो 8,95,149 फॉर PWD कैटेगरी. ठीक. फिर राउंड 2 में कि लाइक कटअप जो है डिक्रीज होता है. इसमें जो है PWD कैटेगरी के लिए 141 कटअप हुआ था. एंड अगर मैं बात करूं फिर एट द एंड यानी 4 राउंड्स हुए थे आपके जो है ऑल इंडिया कोटा से. तो एट द एंड ओपन मेरिट का लास्ट ईयर का टफ पेपर था. ठीक. अगर मैं बोल रहा हूँ लाइक आपका उतना स्कोर भी आता है, लाइक आप नीट पेपर देंगे आपको लगेगा कि मैंने 500 इतने मार्क्स कर दिए, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बोल रहा हूँ. आपको लगेगा कि मैंने कर दिया, आपको तुक्के 50-50 करने की ज़रूरत नहीं है. इन केस पेपर टफ आता है, आप समझ जाइएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. लास्ट ईयर से भी टफ आता है तो 500 पे भी ओपन मेरिट को सिलेक्शन हो जाएगी. बट लास्ट ईयर 525 पे लास्ट बंदे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज अलॉट हो गया था. OBC कैटेगरी में भी 525 पे कॉलेज अलॉट हो गया था. EWS कैटेगरी में 521 पे जो है कॉलेज अलॉट हो गया था. SC कैटेगरी में 440 पे कॉलेज अलॉट हो गया था. ST कैटेगरी में 424 पे लास्टली कॉलेज अलॉट हो गया था. PWD की मैं बात करूं तो 11,57,620 पे लास्टली कॉलेज अलॉट हो गया था. वो अराउंड यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर लास्ट ईयर था. अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या कुछ आपका कट ऑफ आता है. कि हमारा जो है JK पोप स्टेट काउंसिल है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी ऐड हो गई थी. तो पहले राउंड में जो है 530 हो जाता है. यू ऑल्सो नो दिस कि पहले राउंड में कट ऑफ जो है बहुत ही बढ़ जाता है. बट एट द एंड की मैं बात करूं, एट द एंड आपका जो है लाइक एसकॉम्स में 485 भी चला गया था. तो उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका जो ओपन मेरिट का था, जब आपको थर्ड राउंड हुआ था, जब न्यू सीट्स ऐड हुई थी तो 523 हुआ था. तो फीमेल इसका 504 हुआ था. ठीक. फिर एट द एंड जब लाइक सारे राउंड्स हो गए तो उसके बाद जो है ओपन मेरिट का 515 पे कॉलेज मिल गया था. एंड ओपन मेरिट फीमेल इसका 495 पे कॉलेज मिल गया था.
RBI कैटेगरी में 496 मेल्स का कट ऑफ रहा, 449 फीमेल्स का कट ऑफ रहा। ST1 में 399 कट ऑफ रहा, ST1 में फीमेल्स का 353 कट ऑफ रहा। ST2 की बात करें, इसका थोड़ा सा हाई ही हो जाता है, मेल्स और फीमेल्स में भी 413 मेल्स का हुआ था, 386 फीमेल्स का कट ऑफ हो गया था। OBC कैटेगरी की मैं बात करूं, मेल्स का 449 रहा था, फीमेल्स का 384 रहा था। देखिए, लेट मी क्लियर वन थिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या थे 600 स्कोर पे, 590 पे, ठीक है, उनको लग रहा है हमारा पेपर अच्छा हुआ था, तो अब हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। देखिए, अगर आपके 590 भी थे, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोला भी होगा 590 से, बट पेपर लीक हुआ था, 590 सेफ नहीं था, आपका कट ऑफ जो है 650 हो जाता, ठीक है। ओपन मेरिट का कट ऑफ 650 प्लस भी हो सकता था, क्योंकि पेपर सबके पास पहुंच गया था, तो सब बच्चे जो है जिनने पेपर देखा था वो 650 प्लस स्कोर कर रहे थे, तो ओबियसली ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ बढ़ जाता, हमारे स्टेट का भी, कि JNK में भी पेपर लीक हुआ था, तो JNK का भी कट ऑफ हाई हो जाता, 620 प्लस कट ऑफ रहता। इवन के कैटेगरीज में लाइक SC ST का तो 450 पे भी चला जाता है कट, लेकिन इस बार उसका भी कट ऑफ जो है हाई चला जाता इसकी वजह से। तो अच्छा हुआ कि आपका रीनीट हो रहा है, आपको भी सीट नहीं मिलती जिनका अच्छा स्कोर यहाँ पर था, ठीक है। एट द एंड आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती। देखिए, ALC कैटेगरी की मैं बात करूं, ALC कैटेगरी में 394 कट ऑफ हुआ था मेल्स का, फीमेल्स का 375। EWS कैटेगरी का बहुत ही कम कट ऑफ हुआ था, मेल्स का 312 एंड फीमेल्स का 271। एस कॉमर्स जम्मू की मैं बात करूं, एस कॉमर्स में लास्टली 494 कट ऑफ हुआ, एंड SMVD में सीट्स 50 सीट्स ऐड हुई थी, तो इसका कट ऑफ 489 हुआ था। बट फिर ये जो SMVD बंद हुआ, इसकी जो सीट्स है वो GMCs में शिफ्ट कर दी गई। डैट मीन्स एट द एंड लास्ट ईयर 489 कट ऑफ हुआ। ST लद्दाख मील्स का कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 319 हुआ, एंड ST कारगिल मेल्स में 389 एंड ST कारगिल फीमेल्स में 418 कट ऑफ हुआ था। काफ़ी सारे लद्दाख के बच्चे बोलते हैं सर आप हमारा कट ऑफ नहीं दिखाते। SC कैटेगरी की मैं बात करूँ, SC कैटेगरी में मेल्स का 348 कट ऑफ हुआ था एंड फीमेल्स का 383। कि SC एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप क्या है कि 348 लाइक मेल्स का था, 383 फीमेल्स का कट ऑफ इसमें हाई चला जाता है इस कंपेयर टू मेल्स। बाकी जो है फिर आयुष की काउंसलिंग है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्या कीजिए, अगर लाइक आपका रीनीट जो है जल्दी होता है या जून जुलाई में भी होता है, देन प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर है। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया नेगेटिविटी राइट नाउ, यू जस्ट फोकस NCERT रिवीजन पे फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट पे, टाइम मैनेजमेंट पे, बायोलॉजी एक्यूरेसी, फिजिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। Many students lose marks not because they do not know concepts but because of panic and pressure during the exam। आपको ये पता ही होगा, तो काफ़ी बच्चों के साथ लाइक होने वाला भी होगा, बट आप अभी से क्या कीजिए, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग यूर सेल्फ विद अदर्स। योर जर्नी इज डिफरेंट, सम स्टूडेंट्स स्टार्टिंग प्रेपरेशन अर्ली, सम लेट, सम फेस पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस होगा, तो आपको क्या करना है, stay constant। To all students watching this video, do not be sad, stay focused, stay mentally strong, your hard work will still matters whether the paper is easy or tough, consistency always wins in the end, believe in yourself because you are capable of achieving your medical college। तो जो भी स्टूडेंट लाइक यहाँ पर मुझे देख रहा है, आप अच्छे से जो है मेंटली स्ट्रांग रहिए, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं टिल कॉलेज ज्वाइनिंग, जब आपका नीट होगा, उससे पहले भी, नीट के बाद भी, काउंसलिंग में सब कुछ ठीक से होगा। एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स बोलूँ तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका पेपर जो है हो जाएगा। 7 से 10 दिन आपका जो है लगेगा यहाँ पर ऑफिशियल डेट्स आने में, आप उनका वेट कीजिए। फिलहाल जो है आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करिए, आप क्या करिए, आप जो है NCERT पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सब सीखिए। जो गलतियाँ बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स ने की वो फिर से नहीं करनी है, आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, आप जो है फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्टडीइंग, यू कैन डू इट। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।